So now we all would agree, with the second largest population in the world, India should have no shortage of world-class athletes. Over the years, there have been several initiatives from the government to set up sports infrastructure. However, there are still challenges that need to be overcome. We have a high-powered panel featuring Mr. J. Meghanath Reddy, Member Secretary, Sports Development Authority of Tamil Nadu, Mr. Ravindran Sankaran, Director General and CEO, Bihar State Sports Authority, former 2004 Olympic captain and now Hockey India President, Dileep Tirki, and twice Olympic captain and current Punjab MLA, Pargat Singh. And facilitating the session is Shireen, who is a senior journalist and presenter. Mr. Sankaran actually could not be here. They've just finished hosting a very big hockey tournament, so I think he's a bit caught up with that. I'd actually like to thank all my guests because it's been very difficult for them to come on a day when there are lots of weddings happening and not else happening. So thank you so much, everyone. I'm going to begin with Mr. Reddy. One of the things that we are now perhaps reading more about is how every state is trying to improve its sports infrastructure, trying to announce a lot of schemes, and this is beyond what the center is doing. Is this like something new, or is it something that we're getting to know about now? One of the mistakes, that we have always done and doing from a sports administration perspective is, we see a sport completely from either a government of India perspective or a state government perspective. So assuming there is an Olympics and you win medals, you either credit state government or the central government, and there's a lot of fight. But what we have not, properly looked at is last 2 decades particularly, the way India has undergone a lot of socio-economic churn. One of the sectors that has benefited from that is sports. So there is this community at large, Indian society at large, for the first time ever, generation of parents which started taking to sports. That somehow we missed. So we have not seen that there are many private academies which have come up, that there are schools which encourage a lot of sporting talent. For example, Srinath was here. You'll be surprised to know that almost every GM that comes out of Chennai comes from the same school. They all study in the same school. It's no coincidence that the school takes it up. And another example I can quote is 4 Paralympians won medals for Tamil Nadu in the last edition. None of them come from the major cities. One of them come from a small town called Salem. The other one comes from Kanchipuram. The other one from Tiruvallur. The other one from a small town called Hosur. So somewhere Indian society has been witnessing that churn, that change from a sporting perspective, and which we fail to look at. And I'm glad that we are looking at that now. So that churn was always there, and the reason why the states are in focus now is a credit should go to some of the states. I must credit Odisha largely. They've changed the narrative that a state looks at sports. We were for a large part of time were complacent. We were looking at central government for funding and other measures, but Odisha changed that, and then now Bihar is doing it. Tamil Nadu has started doing it. So states have realized that there is this potential that they can tap into and show to the world that states can do a lot from a sporting perspective. My next question is going to be for Pargat. Pargat, when you were the sports director of Punjab, I remember you would go to people and say, cricket bat de deo, hockey sticks donate kar deo, paise nahi chahiye. And that was like such an unusual thing. You were not turning to the state, you were not turning to the center. What was your experience, and does the strategy now need to be different? See, Shireen, मेरे को लगता है कि इस कंट्री में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन unfortunately neither any government, most probably, nor any bureaucratic system, they are supporting the sports. क्योंकि एक हमारे जहन में आ गई कि ये सब कुछ लास्ट करने वाला है, और एक स्पोर्ट्समैन को बनने के लिए ऑलमोस्ट 10 से 15 साल लगते हैं. ही इज़ गोइंग थ्रू वेरियस सिस्टम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, बट हमारे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है. ये ठीक है कि हम कहीं कहीं ठीक करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे. 119 वी पार्टिसिपेटेड इन दिस लास्ट ओलंपिक्स, एंड 140-45 करोड़ का देश है. इसका मतलब 1 करोड़ के पीछे एक भी नहीं, क्योंकि हम सिर्फ इसको इस तरह से देखते हैं कि क्योंकि नाउ आई एम इन पॉलिटिक्स,
बीइंग ए ब्यूरोक्रेट, बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस है वो इसको ये सोचते हैं कि यार एक बार ना दिखा दो हमें, रेसलिंग करके दिखा दो, खेल के दिखा दो, पर उनको ये नहीं पता कि इसके पीछे कितने साल लगे हुए हैं और उसकी जो कंटिन्यूटी है। एंड जो ब्यूरोक्रेट, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके लिए लास्ट प्रेफरेंस है टू बी ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और टू बी ए डायरेक्टर स्पोर्ट्स, क्योंकि उनके लिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो इस साइड को लीड करना चाहते हैं। तो उड़ीसा इज एग्जाम्पल कि इन्होंने पिछले समय में हॉकी को सपोर्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, क्योंकि हम उस लेवल की बात कर रहे हैं जहां हमें मेडल आ रहे हैं, हमें ग्लैमर दिख रहा है, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि जो जितनी मेरे को समझ है कि 3 साल से जब बच्चा शुरू होता है उसके फिजिकल और मेंटल पैरामीटर जो फिक्स जो है वो 3 से लेके 8 साल के बीच में हो सकते हैं, लेकिन हम 8 साल के बाद सोचना शुरू करते हैं कि हाँ भी इस पे हमने क्या करना है। और उसके क्योंकि हमारा स्कूल्स में कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है, कॉलेजेस में ऐसा कुछ कंटिन्यूटी नहीं है, क्योंकि अगर जो लीडिंग कंट्रीज हैं हम इससे असेस कर सकते हैं कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज का टोटल बजट है वो कभी कभी 0.7% होता है, 1000 के पीछे 7 पैसे। एंड गुड कंट्रीज दे आर स्पेंडिंग 10 to 15% ऑफ देयर टोटल बजट ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम इंसान को बनाएं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम बिल्डिंग बनाएं, क्योंकि बिल्डिंग तो जब भी जैसी जरूरत होगी इंसान बना लेगा, लेकिन जब उसको चाहिए क्या कि हम इस इंसान को कैसा बना रहे हैं, तो उसके लिए एजुकेशन और स्पोर्ट्स, क्योंकि दीज आर 2 मेजर पैरामीटर्स जिसने इंसान को आगे लेके जाना होता है। सो ये हमारी प्रॉब्लम जो है वो हमारा जो बजट भी है, कई बार डिस्कशन में आता है कि भाई चाइना इज डूइंग सो मच। मैं कह यार सी द गैप ऑफ व्हाट वी आर स्पेंडिंग ऑन द यंगर जनरेशन। लेकिन प्रगट इसी पे मैं एक आगे पॉइंट पे आऊंगी। कम्युनिटी, जैसे यूएस को माना जाता है कि सबसे बड़ी स्पोर्टिंग एक पावर है। दिलीप, आपको क्या लगता है, जब आप खेल रहे थे और आप दोनों बहुत सुपर अचीवर्स रहे हैं हॉकी में, ओलंपिक्स खेले हैं, मेडल्स जीते हैं, उस वक्त इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर नहीं था, उस वक्त खुद आप एक एफर्ट करते होते थे। कम्युनिटी और स्कूल्स कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्टेट को अलग रखते हुए? सबसे पहली बात तो पहली बार प्रगट भाई साहब के साथ बैठने का मौका मिला। आप सब जानते हैं कि प्रगट सिंह वर्ल्ड के एक लेजेंड रहा है। जब आपने कहा, जब 25-30 इयर्स बैक के बात मैं कहना चाहूँगा, उस टाइम स्पोर्ट्स को लेकर मेरे ख्याल से एक लेवल पे अचीव करना, ओलंपिक्स में मेडल लाना, वर्ल्ड कप से मेडल लाना, मेरे ख्याल से उस हिसाब से, उस सोच विचार के हिसाब से हम बिल्कुल प्रैक्टिस अध्ययन नहीं था। जबकि हमारे पास क्वालिटी बच्चे थे, हमारे पास बच्चों में इंटरेस्ट थी, लेकिन हम उस हिसाब से उसको मोटिवेट, उस हिसाब से हम सिस्टम में नहीं ला रहे थे। हम कम्युनिटी की बात करें, कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज डिफरेंट अपने हिसाब से स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते थे। जैसे मैं सुंदरगढ़ की बात मैं करना चाहूँगा, वहाँ पे बच्चे मेरे ख्याल से 1000s बच्चे पागल हैं स्पोर्ट्स के लिए, हॉकी के लिए, लेकिन उस टाइम उसी से सिस्टम काम नहीं कर रही थी। स्कूल में ट्राइबल बच्चे स्पोर्ट्स के लिए रनिंग करते थे, दौड़ते थे, हॉकी खेलते थे, लेकिन उस हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं थी। हाँ, जैसे रेड्डी साहब जी ने बोला कि प्रगट भाई साहब भी अभी कुछ सालों में मुझे भी दिख रहा है, जब गवर्नमेंट सामने आ रहा है स्पोर्ट्स को थोड़ा आगे ले जाने के लिए, और कुछ स्टेट में अभी मेरे ख्याल से अभी थोड़ा हलचल तो अब दिखने को मिल रहा है। उड़ीसा ने एक, चलो मैं फॉर्मर सीएम नवीन पटनायक जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म शुरुआत कर दी और उसको फॉलो अभी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, उड़ीसा से स्टार्ट हुआ, तमिलनाडु बहुत अच्छा अभी काम कर रहे हैं, अभी बिहार में आपने देख लिया,
पंजाब में मेरे ख्याल से कुछ साल पहले कई सारे एकेडमिक्स स्टार्ट किए। परगट सिंह जब थे हॉकी स्टिक मेरे ख्याल से डिस्ट्रीब्यूट से स्टार्ट किए थे। टर्फ छोटे छोटे टर्फुल से टर्फ लगाने मेरे ख्याल से पैसा नहीं थे उतने, इसलिए हाफ साइज टर्फ लगा के एटलीस्ट प्रैक्टिस किया जाए और स्टार्ट किए हुए थे। कुछ राज्यों में जब शुरुआत किए, स्पेशली हॉकी की मैं बात करूं, तब जाके अभी उसका मैं कहूँगा अब रिफ्लेक्ट हो रहा है। और आज के तारीख में गवर्नमेंट के सपोर्ट से, सेंट्रल गवर्नमेंट, कई स्टेट गवर्नमेंट के मदद से आज एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, हमारे बच्चे इंटरनेशनल इवेंट में हम बेटर कर सकते हैं। आज देख लीजिए, हम हॉकी की बात करें, हॉकी 50-5 सालों में जो अचीव किया है, मेरे ख्याल से हम 80 के बाद कभी कर नहीं पाए थे। इसके कई सारे रीजन हैं, कई सारे हॉकी इंडिया तो अभी काम कर ही रहे हैं, और हॉकी इंडिया अभी फोकस कर रहा है कि अभी टेक्निकली कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ पहले नहीं होती थी, कहाँ कहाँ करने से प्लेयर्स और टीमों के इंप्रूव है, उस पर हम लोग अभी ध्यान देने बल दे रहे हैं। I think one round of applause, please, if anyone doesn't know. Dilip has played with Pargat as his captain, and today the two of them have actually come together. Two Olympians who have done outstanding work. Today they are here in their official capacity as President of Hockey India, and Pargat has done so much work. He's now a politician, but let's never forget they're sports people at heart, and they really feel for the sport. Mr. Reddy, one of the things that keeps coming up is that state is supposed to look after sport. Sport is a state subject. So why should the centre have schemes like Khelo India and TOPS schemes? Do you feel that there needs to be better coordination between the state and the centre? I mean, we'll have to understand something, that creating a sports person or a sports culture or bringing out champions, it's not like, it's a duty of a state or a centre. It's a continuum. For example, state succeeds in spotting a talent, an athlete talent or a hockey talent. Probably till his, grade 10 or, junior level, he'll be with state. But after that, the centre takes over. You'll have centre of excellence and all. From a state perspective, what I have understood is, states have been, complaining that enough funds have not come, enough focus has not come. That's a different story. I mean, I don't think it's right to, at least for me, to get into that. But being with Sports Development Authority of Tamil Nadu for the last 2 years, 2.5 years, what I have understood is, if financing is a question that, states say, we don't have finances, I think we are probably having wrong priorities or wrong targets. I remember most of us do create a lot of, furore when we see that there is a budget announced and there is, budget allocations come down for health and education. That's something we read in newspaper. Issal, health budget has come down, education budget has come down. None of us question any state government that what is your sports budget. No one knows, how much do they allocate. And let me tell you, it doesn't cost at all to, make sports your priority sector in a state. All you would need is, in my experience, probably some 200-300 crore, which is very minimal from a state's budgeting perspective of 1 lakh crore and 2 lakh crore. You give education some 15,000, 20,000 crore, and what's wrong in giving some 300 crore, to a sports sector? All that probably you could do is create some hostels, centers of excellence in every district, which is very easily doable. Create some tracks, create some mini stadium at each constituency level or a block level, and all this wouldn't cost anything. And even from a sports person's perspective, I'll just give you 2 examples which comes fresh to my memory. There's a girl from North Madras, which you can call as Old Madras, who is a carom player who has been literally doing on her own. Suddenly approached state government, said there is a World Cup of carom happening in USA, where 18 countries would participate, and all she needed was 2 lakh rupees to fly to US. We have a foundation in Tamil Nadu called Tamil Nadu Champions Foundation, which if given a chance would elaborate a good practice. Three of the players came. We immediately sanctioned. What did it cost us? Some 8 lakhs, 3 players and 1 coach. The girl came back as world champion yesterday. She is the women world champion of caroms. Defeated another Indian. And all the 3 girls that we sent, with just costing us 6 lakh rupee, came back with medals. And there is an interesting story. I don't know whether Srinath is around here. There is an interesting story behind Gukesh going to candidates. Srinath approached our state development authority saying that
Gukesh has this one last chance through the FIDE circuit to enter candidates. And we need one tournament. They said, can Tamil Nadu, do a tournament for this? There are some 8 guys which would come around for the competition. Gukesh has every strong possibility to win this tournament and go to candidates. It costed us 1.7 crore. Honestly, not much from a state budgeting perspective. A seminar like this would cost 50-60 lakhs. So we hosted it. Gukesh won that tournament. We call it Chennai Grandmasters. Went to candidates, won the candidates, and is now on the verge of becoming world champion. I mean, just 2 small examples from a state's perspective. It did not cost us anything, but the kind of inspiration that would churn. If Gukesh goes on to win, I'm sure, we'll find another 10 Gukesh in the next 10 years in this country, and probably 5 from Chennai itself. So that's where, states will have to set its priorities right. दिलीप, आपने बहुत कम बात की कि आप खुद अपने इंडिविजुअल लेवल पे सुंदरगढ़ में क्या कर रहे हो हॉकी के लिए और किस तरह से वो वहाँ की इकोनॉमी को बेनिफिट कर रहा है। आप एक हैट पहनते हो हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट की, ऑफिशियल हैट है, फेडरेशन क्या कर सकती है, एक आप एज एन इंडिविजुअल अपने रीजन के लिए क्या करते हो। दोनों को जब आप देखते हो तो क्या आपको लगता है कुछ इंडिविजुअल्स जो इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स हैं, फॉर्मर प्लेयर्स हैं, फॉर्मर कोचेज हैं, आपको क्या लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को उनको ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए या वो अपने लेवल पे कुछ और काम कर सकते हैं? और वो सुंदरगढ़ के बारे में कुछ बताइए प्लीज़। देखिए, आज मुझे ऐसा लगता है कि कोचों की कमी है। हमारे खिलाड़ी हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, रिटायर्ड होने के बाद कोचिंग में या सोशल प्रोग्राम में, सोशल एक्टिविटीज़ में या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मेरे ख्याल से डीपली इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आखिर मैं ये समझता हूँ कि मैं आज हूँ तो हॉकी के लिए ही हूँ और हॉकी के लिए मुझे जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करना चाहिए। तो कई सारे एक्टिविटीज़ हम हॉकी को बढ़ाओ। उस टाइम मेरे ख्याल से गवर्नमेंट आने से पहले, मेरे ख्याल से उस टाइम शुरुआत नहीं हुए थे गवर्नमेंट की ओर से। उस टाइम हम लोग कोशिश किए थे कि रूरल एरियाज़ में हम लोग भाई हॉकी स्टिक दे के, उनको टी-शर्ट दे के, सब दे के इंटरेस्ट बढ़ाया जाए, इवेंट कराया जाए। इसलिए क्रेज़ कैसे आएगा, क्योंकि हमारे वहाँ पे उड़ीसा हॉकी मतलब रूरल हॉकी है, गांव की हॉकी है। उनको हम जब तक बढ़ावा नहीं देंगे, बच्चों को हम इक्विपमेंट नहीं देंगे, उनको इंटरेस्ट नहीं, हम उनके पास नहीं जाएंगे तो इंटरेस्ट नहीं। इसलिए हम लोग कोशिश किया कि बहुत एक इवेंट हम लोग कराया, हम लोग ने ऑर्गेनाइज किए थे। 1458 टीम्स पार्टिसिपेट किए थे। वाइस प्रेसिडेंट अंसारी जी आए हुए थे, सीएम आए हुए थे उद्घाटन के लिए। और उस दिन हम यूथ, जितने भी यूथ हैं, उड़ीसा के यूथ, छत्तीसगढ़ के यूथ, झारखंड के यूथ आके सेलिब्रेट किए थे। मेरे ख्याल से 22,000 हॉकी स्टिक उठा था उस दिन, जस्ट हॉकी पॉपुलर करने के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट ने वहाँ पे हॉकी को प्रमोट करने के डिस्ट्रिक्ट लेवल में टर्फ लगवाए, सिंथेटिक सैंड टर्फ। मेरे ख्याल से 17 ब्लॉक हैं, 16 उसके संबलपुर में 2, जाजपुर में, हमारे ब्रह्मपुर में, ऐसे करके काफ़ी 32 या 34 टर्फ अब तक लग चुकी है हॉकी प्रमोशन के लिए। कोचिंग, ग्रास रूट कोचिंग प्रोग्राम को अब स्ट्रेंथनिंग करने जा रहे हैं। वहाँ पे जितने भी हॉस्टल है, एकेडमिक्स से कमी रहा, हमारे जो कोचेस और सपोर्टिंग स्टाफ, उसको कैसे मजबूत किया जाए, उस पर ध्यान दे रहे हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर अभी उसको ध्यान, मेरे ख्याल 8 से 10 खेलों का, जिसमें हम फ्यूचर में मेडल आ सकता है या ओलंपिक्स खेलों को काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रहे हैं गवर्नमेंट। और वहाँ पे बेटर कोच, बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मॉडर्न स्पोर्ट्स साइंस सेंटर जो बेस्ट फैसिलिटीज है वर्ल्ड में, उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। न्यूट्रिशन को, जो बेस्ट न्यूट्रिशन वहाँ पे हायर करके वहाँ पे लगाया गया है। सो इस लेवल पे अभी उड़ीसा गवर्नमेंट अभी काम कर रहा है। पर आपके ट्विटर पे ना एक पिंड ट्वीट है जिसमें आपने डाले हुए बजट्स कि स्टेट गवर्नमेंट का कितना है इस वक्त। एंड आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू द लोकसभा वेबसाइट एंड खेलो इंडिया, द 2 states दैट हैव टेकन द मैक्सिमम बजट आर गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। आपके ट्वीट का ये मानना है कि अगर किसी का बजट 400 crores है, इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट दे विल प्रोड्यूस 400 Olympians. Is that what you're saying? Can you elaborate on that? देखिए, जो मैं इसको विजुलाइज करता हूँ कि ये सिर्फ मेडल्स की बात है।
हमें दुनिया को ये दिखाना है कि हमारी जो यंगर लॉट है वो कितनी हेल्दी और प्रॉस्पेरस है। आज की स्पोर्ट्स दुनिया में यही दिखाती है, लेकिन उस नज़रिए से हम काम नहीं करते। इफ़ यू लुक एट चाइना, देयर आर 3 tier ऑफ सिस्टम। वन इज स्पोर्ट्स फॉर ऑल, स्पेशलाइजेशन एंड सुपर स्पेशलाइजेशन। अगर कंट्री में आप ऐसे काम नहीं करोगे और उसकी कंटिन्यूटी नहीं होगी तो हमारा देश ठीक है, मतलब कभी 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, बट इससे ज़्यादा हम कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 30 साल में चाइना की ऑफिशियली नेशन की 2.5 इंचेस हाइट इंक्रीज हो गई। दे रिड्यूस्ड 50% ऑफ देयर टोटल हॉस्पिटल्स टू प्ले ग्राउंड, बिकॉज विद द थिंकिंग कि जिनके ग्राउंड भरे होते हैं उनके हॉस्पिटल खाली होते हैं, लेकिन हमारे हॉस्पिटल्स की लाइन लगी हुई है, लेकिन ग्राउंड जितने हैं वो भी, हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि मैं जब पॉलिटिकल सिस्टम को देखता हूं तो मेरे को बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, क्योंकि दे हार्डली डिस्कस ऑन दीज इश्यूज, और ब्यूरोक्रेट, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा सिस्टम, क्योंकि टेक्नोक्रेट्स को तो ऑलमोस्ट इन्होंने बाहर कर दिया, क्योंकि टेक्नोक्रेट्स तो ये फेडरेशन में कभी लड़ गए, कभी किसी में लड़ पड़े, क्योंकि वो एक अदर स्टोरी है। क्योंकि हमारे जो कंट्री में सिस्टम जो रन हो रहा है वो एक अदर स्टोरी है, कि जो हमारी जो जितना ओलंपिक चार्टर है, क्योंकि जब चार्टर की बात आती है, जब परफॉर्मेंस की बात आती है, हम कहते हैं कि ओलंपिक चार्टर है। जब कभी कोई फंड्स की बात आती है या कुछ करने की बात आती है तो वो कहते हैं कि हमारे देश को करना चाहिए, लेकिन हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं नहीं, क्योंकि बहुत साल कलमाडी जी ने निकाल दिए, उसके बाद बत्रे ने निकाल दिए, उसके बाद बहुत से ऐसे जोकर आते हैं। मैं रियलिटी ये कहूँ कि बहुत से ऐसे लोग आते हैं कि जो स्पोर्ट्स को एक ऐसी फील्ड समझते हैं जिससे वो कहते हैं कि हम ग्लैमरस तो हों लेकिन हमारी कंट्रीब्यूशन कोई ना हो। क्योंकि मैंने ब्यूरोक्रेसी में भी देखा है, सॉरी टू से, कि व्हेन आई वाज ए डायरेक्टर स्पोर्ट्स, मेरा ख्याल है कि कोई इंसान लास्ट पोस्टिंग चाहेगा ब्यूरोक्रेसी से कि मेरे को डायरेक्टर स्पोर्ट्स या सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मिला। ये बेसिक मानसिकता है, क्योंकि 3 काम है। पॉलिटिकल सिस्टम ने इसको सोचना है कि हाँ भाई कहाँ हमारा देश कहाँ जाना चाहिए, और ब्यूरोक्रेट्स ने इसको बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ले जाना है, और टेक्नोक्रेट्स ने इसको ये देखना है कि टेक्निकली हम कहाँ जा रहे हैं। और जो 4th पिलर है वो मीडिया बेसिकली उसको कैसे उसको लेके आगे बढ़ेगा। वैसे तो आजकल मीडिया का भी यही हाल हो गया, क्योंकि ज़्यादा कई बार ना सच्ची बात बोलने से कई बार तकलीफ हो जाती है। मीडिया वाले बहुत हैं। नहीं, मेरे बहुत से दोस्त बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ, और इनको भी पता है। मैं ये नहीं कहता कि जो मीडिया हाउसेस की बात मैं करता हूँ, क्योंकि जब पॉलिसी मैटर पे हम उतने फेयर नहीं है, क्योंकि करैक्टर बिल्डअप करना, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो एक करैक्टर बिल्डअप करती है कि यार हाँ मैं हार गया, मैंने मेहनत की, लेकिन उससे आगे बढ़ना है। और लेकिन ये अगर करैक्टर हम बेसिकली उसको कंप्रोमाइज कर लेंगे, हमारे देश के जो बेसिक पैरामीटर्स है वो खराब हो जाएंगे। क्योंकि आज जहां जिस तरफ पॉलिटिक्स जा रही है, जिस तरफ हमारा सोच थॉट प्रोसेस जा रहा है, वो स्पोर्ट्स में कभी मैंने देखा नहीं है। मेरे को कोई नहीं है कि अगर कोई कहे कि यार ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये मेरे को तो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होना चाहिए। ये टर्की भाई और मैं इकट्ठे खेलते रहे हैं। सो अल्टीमेटली इफ ही इज ए गुड प्लेयर, देन अल्टीमेटली ही इज ए बेटर टीममेट, एंड दैट इज व्हाट द सोसाइटी इज। मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूं कि सोसाइटी ये कहती है कि यार टर्की मेरा भाई है क्योंकि ये अच्छा स्पोर्ट्समैन है। ये किसी जात से, किसी धर्म से आता है, मेरे को क्या लेना देना। लेकिन अगर हम इस कंट्री को जो बेसिक पैरामीटर है हम किसी डिफरेंट एंगल पे लेके जा रहे हैं, हमारी जो वो स्पिरिट है जिसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं, वो डिफीट कर रहे हैं, जो कंट्री के बेनिफिट में नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली द कंट्री इज द बिगेस्ट asset. I'll interrupt you a bit. Dilip has to catch a flight, but before he goes, there's one last answer. Dilip, मुझे चिट मिल गया कि आपको जाना है, तो आपके जाने से पहले मेरे को एक सवाल पूछना है। जो हॉकी इंडिया लीग है, जैसे
इस तरह की लीग, चाहे वो हॉकी में हो या किसी और गेम में हो, कितना कंट्रीब्यूशन वो गेम को बढ़ाने में कर सकती है, पॉपुलैरिटी में, और जो बात हो रही है, जो प्रगट कह रहे हैं, ऑफ प्रोड्यूसिंग बेटर एथलीट्स, बेटर स्पोर्ट्स पर्सन, प्रोड्यूसिंग अ बेटर स्पोर्टिंग कल्चर, वो कितना कंट्रीब्यूशन कर सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियन स्पोर्ट्स में सबसे पहला लीग शुरुआत हुई थी हॉकी से, PHL प्रीमो हॉकी लीग। उसके बाद क्रिकेट और बाकी खेलों में स्टार्ट हुआ। लीग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ी आके खेल रहे हैं, और इंडियन, स्पेशली इंडियन के जो यूथ खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोजर के लिए प्लेटफॉर्म बनती है। और ये हमने देखे हैं 2013 में जब स्टार्ट हुआ, बहुत सारे आज के मनप्रीत, मनदीप, मेरे ख्याल से अमित, रोहित दास से लेके बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि आज जो स्टार हैं लीग का ही देन है। और मैं समझता हूँ जो हॉकी इंडिया लीग होने से, जिसके साथ देखिए, जिसके साथ एक महीना जितने टॉप क्लास, हर एक टीम में मेरे ख्याल 8 टॉप क्लास प्लेयर हैं और वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर हैं एक टीम में। सो एक टीम में हमारे जितने भी यंग खिलाड़ी हैं उनके साथ प्रैक्टिस करने से, उनके साथ प्रैक्टिस करना, उसके साथ रहना, उनके साथ मैच खेलना, उनके एक लेवल बढ़ जाएगी। सो फ्यूचर में जो ईयरली एज में जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, फ्यूचर में उनको हेल्प करेगा, पहली बात। सो लीग तो ऐसे ही पॉपुलर हो ही रहा है, लोग सब पसंद कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग फोकस कर रहे हैं ग्रास रूट हॉकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्यूचर हॉकी के लिए। तो इसलिए हम लोग कोशिश किया है, हॉकी इंडिया ने अंडर 17 इंडियन टीम बनाने जा रहे हैं, बना चुके हैं। अंडर 19 इंडियन टीम, अंडर 21 हमारे पास है, सीनियर हैं, और एक डेवलपमेंट टीम बना रहे हैं। अंडर 21 के बाद एक डेवलपमेंट टीम भी बन रही है। इसलिए जब तक हम यंगर खिलाड़ियों को, सब जूनियर बच्चों को जब तक हम रेस्पेक्ट नहीं देंगे, जब तक हम इनको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, जब तक हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे, जब तक हम उनको अच्छे कोच के अंडर में कोचिंग नहीं देंगे, अच्छा ट्रेनर के अंदर में हम फिटनेस नहीं दिलाएंगे, तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। पर इसका मतलब फिर दिलीप यही हुआ ना कि अगर 100 है तो उसमें से 70 स्टेट की ही कंट्रीब्यूशन होनी पड़ेगी अगर किसी एथलीट ने बढ़ना है, कि ये उल्टा रेशियो हो सकता है कि एथलीट की कंट्रीब्यूशन 70% है और स्टेट की 30%। देखिए स्पोर्ट्स तो स्टेट में, मेरे ख्याल से स्टेट के गवर्नमेंट, स्टेट के सरकार को ध्यान देना चाहिए। मेरे ख्याल से जैसे मैंने कहा कि पहले बिल्कुल नहीं थी, हमें मालूम है कुछ जो प्राइवेट एकेडमिक्स थे, कुछ कोशिश किए थे भाई प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाए, लेकिन अभी ध्यान दे रहे हैं। जितने भी कई सारे जो 4 स्टेट हैं, 5 स्टेट हैं, उसमें ध्यान दे रहे हैं कोचिंग प्रोग्राम को करने के लिए। और जो खिलाड़ी हमें दिख रही है, जितने खिलाड़ी जो उभर के आ रहे हैं, सब जूनियर लेवल में जो इंडियन टीम बन रही है अभी, मेरे ख्याल यही 4-5 स्टेट के ही प्लेयर्स हैं, जो जहाँ एकेडमिक्स हैं, जहाँ हॉस्टल हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से और भी स्टेट हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए ताकि वहाँ से प्लेयर निकल के आएँ। और सेकंड बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए आज के तारीख में मैं बार बार कहता हूँ कि आज के तारीख में जिसके पास वर्ल्ड क्लास फ्लिकर हैं, वही वर्ल्ड हॉकी को डोमिनेट कर रहे हैं, वही वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स जिता के ले जा रहे हैं। जैसे अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स जब फॉर्म में था 2018, 2021 ओलंपिक्स, 2018 वर्ल्ड कप जिता के ले गया, हाईएस्ट गोल स्कोर करके। देखिए गुंजालो, जब अर्जेंट कहीं नाम निशान नहीं थे, 2016 ओलंपिक गुंजालो जब फॉर्म में आया, जब गुंजालो में फ्लिक करके स्वर्ण जिता के लिए, सोहेल अब्बास जब फ्लिक कर रहे थे उस टाइम पाकिस्तान को डर रहे थे सब। हॉलैंड की बात कर रहे हैं हम जहाँ जिसके बाद लॉम्बी की बात कर रहे हैं हम, और जब हमें आज मेडल मिला है 2021 में या 2024 में, रुपेंद्र पाल और हरमनप्रीत दोनों मिलकर 10 गोल दिए हैं टोक्यो में, और सिर्फ हरमन इस ओलंपिक 10 गोल किए, और भी गोल कर सकता था, मिस करे सेमीफाइनल में और कर सकता था। तो इसलिए शॉर्ट कॉर्नर काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हॉकी में, इसलिए हम शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट भी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोग एक फ्लिकर का एक ग्रुप बना दिए हैं, गोलकीपर लोग एक ग्रुप बना दिए हैं, हॉस्टल अकेडमी में जाके हम कोचिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हैं ईयरली एज में, 15-16 एज में, ताकि हम फ्यूचर में हम बेटर फ्लिकर निकाल सकें। तो इस एरियाज में हम लोग अभी फोकस करें ताकि फ्यूचर में और बेटर प्लेयर हमें मिल पाए। Dilip has to go, so please one big round of applause for Dilip. और इससे जाने से पहले कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। आपको मालूम है कि 95 में जब पहली बार मैं सीनियर इंडिया में खेला, तो भाई साहब को पहली बार खेलने के लिए मौका मिला,
और राइट फुल बैक, मैं राइट फुल बैक खेलता था। जब परगट जी आए तो मैं लेफ्ट फुल बैक खेला। और मुझे एक बात कहते थे, यदि खेलना है तो कॉन्फिडेंस से खेलना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए खेलने में, बस कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और कई साल तक साथ में खेले, 96 ओलंपिक। उसके बाद मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा रोल मॉडल जब रहा, जब मैं डिफेंस खेला तो परगट सिंह ही मेरा रोल मॉडल रहा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मैं पहले फॉरवर्ड में खेलता था। फॉरवर्ड मैं राइट इन राइट आउट खेलता था। जब हॉस्टल में आया तो यहाँ बैठे हुए A.K. बंसल जी, द्रोणाचार्य हैं, साई में। बेस हाई स्कूल में जब पढ़ता था, उस टाइम जब सीनियर थे तो मुझे फॉरवर्ड में खेलने का मौका नहीं मिलता था, है ना। एक दिन एक फॉरवर्ड तबियत खराब, एक डिफेंडर की तबियत खराब हो गया, तो बंसल कोच साहब ने मुझे कहा कि डिफेंस खेलोगे? सर खेलूंगा। तो उसी दिन से मैं डिफेंस हो गया। सो कोच साहब का ऐसा डिसीजन था। सो थैंक यू सो मच आप लोगों को। सो थैंक यू सो मच चिरंजीव जी। मैं निकलता हूँ। थैंक यू। हमारे क्वेश्चन से बच के जा रहे हो। Can we throw it open for some questions? Actually, while that is happening, I have one question, both for Mr. Reddy and for Pargat. Today, do you see sports being used as a political tool? Like Odisha government actually, in terms of managing the event, in terms of managing the whole persona around the state, used sports and used it very effectively for 10 years. Do you think the other states are taking a leaf out of that? I mean, I don't know whether we can call it a political tool, but as I said before, probably states have realized that there is so much of potential that they can, bring forward in sports, and that they can connect to their broader public or electorate, if you want to use the word electorate. Because sports, what I have felt is why Odisha, has done it and why Tamil Nadu is doing it now is such a low-hanging fruit. Our Deputy Chief Minister is a sports minister. After he took over, there's so much of attention towards this, for the simple reason that on a daily basis, he keeps meeting some or the other sports person who goes to participate in some event or who goes to win some event. So what's happening is it's an easy way to connect to your people. It's an easy way to show to the world and to your people that this is what we're able to do. We're able to create champions on a daily basis. You go to his Twitter feed almost on a daily basis, he's meeting some champion or the other. So I think that's where few states have understood that, yes, there's lots that happening in sports sector and lots that happening in each state and in this country. Why not utilize it to reach out to the larger public? Pargat, at the ground level, sports, just as you were saying, that it improves a person. As a human being, it improves you. But at the same time, the states contribute to an extent. We just saw some graphics. Tamil Nadu has the best Olympic level infrastructure. But that hasn't really meant that we are producing very solid champions. You also made a point that sirf champion produce karna enough nahi hai. It is more about produce. From your time to now, do parents still want their children to take up sports other than cricket? Shireen, मेरे को लगता नहीं है. Most of the parents, they wanted they should go to the schools, but not to the grounds. That is the biggest problem with the parents, because मेरे को कभी बहुत कम लगता है, क्योंकि if you count the numbers, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि 119 हम वही 140-45 करोड़ में से ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने चले गए, वो नंबर नहीं है. क्योंकि नंबर तो वो है कि अगर हम अपनी हेल्थ एंगल को इम्प्रूव करें और सुपर स्पेशलिटी के थ्रू हम दुनिया को दिखाएं कि हमारा यूथ कितना हेल्दी और खुशहाल है, क्योंकि वो माइंडसेट हमारा नहीं है. और मैं कहता हूं कि स्पोर्ट्स को यूज करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए. मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये जो आज की हॉकी टीम भी है, मैं कभी ये नहीं कहता कि मैंने कुछ किया, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं कुछ करूं, क्योंकि इससे मेरे को बहुत कुछ मिला है. ये जितने पंजाब के प्लेयर हैं, ये 2005-6 के 7 की बैच के प्लेयर हैं. ये
प्लेयर एक दिन में नहीं बनता, एक साल में नहीं बनता, इसको 10 से 15 साल का समय लगता है। क्योंकि अगर हम आज भी 2036 ओलंपिक की बात करते हैं तो टाइम इज नॉट सफिशिएंट टू गो एट दैट लेवल, क्योंकि बहुत से कंट्रीज जो है वो 2040 की, 2044 की ऑलमोस्ट देयर इन प्रोसेस, लेकिन हमारे पास कोई इतना पूल नहीं है। मैं तुर्की की इस बात से सहमत नहीं हूं कि एक 100 प्लेयर को लेके अगर आप कहो कि हमारे पास बहुत बड़ा पूल है, क्योंकि जितनी देर हमारे पास, क्योंकि देखो चाइना ने 9 करोड़ बच्चे से शुरू किया, एंड स्पेशलाइजेशन इज 9 लाख एंड सुपर स्पेशलाइजेशन इज 9,000। हमारे पास कितने होंगे? 200, 300, 400 सुपर स्पेशलाइजेशन में। क्योंकि अगर हम कंट्री के एंगल से देखते हैं तो उस एंगल से हमारा बहुत ही हमें काम करने की जरूरत है, टेक्निकली भी, ब्यूरोक्रेटिकली भी और पॉलिटिकली भी। क्योंकि अगर हम इन सब एंगल्स को नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हम वो अचीव नहीं कर सकेंगे जो हमें अचीव करना चाहिए। क्योंकि बजट तो मतलब नॉट ओनली इन स्टेट्स बट एट द सेंट्रल लेवल ऑल्सो, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन है, एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जब देश की बात आती है तो स्टेट ऑटोमेटिकली उसी में आ जाती है। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था पंजाब में, व्हेन आई वाज डायरेक्टर स्पोर्ट्स, देयर वाज हार्डली एनी बजट। मैंने कहा यार हॉकी के लिए क्योंकि मैंने 20 लोग जो हर गेम के टॉप लेवल थे, मैंने उनको कहा कि यार आप आओ, आप हेल्प करो, आप अपनी अपनी गेम को देखो कि कहाँ कहाँ हमने इम्प्रूव करना है, और मैं देखता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिवली पैसे कहाँ से आएंगे, कोचेस कहाँ से आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे। और मेरे को याद है कि एस्ट्रोटर्फ, मैंने एक शिवाजी स्टेडियम से सेकंड हैंड एस्ट्रोटर्फ bought it for 5 lakhs, make it to 5 pieces and make 5 grounds, 6-a-side grounds। तो मेरे को उस टाइम भी जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे मनोज सिंह गिल, ही सेड कि यार प्रगट तेरे कोल कित्थों पैसे आए? मैं कहा जी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कहा जी पजामे चो ना कच्छे बना देते, क्योंकि एक बड़ी ग्राउंड से 5 छोटी ग्राउंड बना देती। एंड आई पुट इन दोज विलेजेस वेयर बेसिकली द एक्चुअल टैलेंट वाज देयर, क्योंकि वो बच्चे वहां नहीं आ सकते, शहर में नहीं आ सकते, कहीं दूर नहीं आ सकते। सो अल्टीमेटली वी हैव टू पुश लाइक दिस। और उसके बाद अल्टीमेटली, क्योंकि ड्रग्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं समझता हूं पंजाब में भी है और अदर स्टेट्स में भी है, और उसकी बेस्ट रेमेडी है जो हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स में मैक्सिमम नंबर पे जाना चाहिए, सो दैट कि आने वाला समय जो है वो जो खास करके हमारा जो मेंटल एबिलिटी है, क्योंकि बहुत से बच्चे मैं देख रहा हूं कि दे आर हार्डली गोइंग टू एनी ग्राउंड्स, दे आर ऑन गैजेट्स। और आने वाला समय जो मेंटल हेल्थ का बहुत इशू होने वाला है, उसके लिए हमें एज ए कंट्री ये चाहिए कि हमारा हर बच्चा जो है ग्राउंड को टच करे, अल्टीमेटली ही शुड फील इट। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बच्चे बहुत इंडिविजुअलाइज्ड हो गए, क्योंकि फेसबुक पे उनके 5000 दोस्त हैं, अदरवाइज प्रैक्टिकली एक भी नहीं है। उनकी फीलिंग जो है वो अल्टीमेटली एग्जीक्यूट नहीं कर रही जो उसकी बॉडी चाहती है। सो उसके ऊपर हमें एज ए नेशन हमें काम करना चाहिए, इसी स्पिरिट से हमें नेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। All right, I know we're running out of time, but if there are any quick If there are any questions, yes, otherwise please. we'll- The gentleman in black, yes, please. Can we please pass the mic to him? I think I may be the senior most over here. I'm senior to Pargat also. I played 78 Asian Games and won the medal. That's the one thing. Second, I may be the well connected till this date because in the last month gone to play a Masters World Cup hockey and won the bronze medal also there also. As he said, a lot of questions have come and are asked to the state governments to tell it. Hockey India roles comes in the last, but the states comes the first to take care of everything. For example, what I feel in none of the school in India till this date do a talent hunting programs. None. So the state should make mandatory to the all school colleges to run the talent hunting programs so that you should know what talent is with you. That's first thing. Second, the turf grounds.
so many turf grounds in the states which has not been used rightly. The reason is only the state coaches do the training programs there. 25 kids in the morning, 25 in the evening, that's all. 7 crore worth of the turf ground, which will last only 7 years. Whether you play or don't play, it will vanish. It had to be used extensively. Then, as Turkey was telling it, none of the master, maybe other than me, are coming to the ground. They have not been given any programs, they have not been welcomed, they have not been paid money, so that you come on a ground, bring your children, run the academies and produce. State coaches cannot produce because they themselves are not the great players. They cannot demonstrate, they cannot teach it. So the state governments has to take initiatives to run the program in such a manner where the talent hunting should happen, field should be used rightly, the budget should be used rightly. Otherwise, Hockey India comes in the last to do it. They cannot do it unless the state gives them. As Odisha started this, they have running the centers, they are doing it. Again, he is also telling, we are not getting the coaches. Why we are not getting the coaches? State are as responsible. Every coach in a state is have a salary level of 40 to 50, 60,000. But when there's any masters who plays for India, he is getting a salary of 1.5 or 2 lakhs. So if you will not create the post, 4 or 5 posts in a state where the salaries be given 2 lakh plus, none of the good player going to become a coach and to come forward. That's the basic problem. And when they will not come forward, the junior coaches will not learn what exactly hockey should be. So eventually what's happening, all grassroots at the hockey level is going to the people to learn the hockey who don't know the hockey by themselves. And none of the senior is going to ground because neither they allow them nor they welcome them. So how you can run the hockey? Second is the role models. Like Mr. Pagat, Mr. Turkey. You tell me in India, who is the role model for the hockey? Other than Dada Dhyan Chand, we show one small photograph. If you go to any hockey stadium, even the state hockey stadiums, you will not find how many people from a state who have played for a country have got a photographs in the stadiums. So you are not showing a role models to the players who want to know who have played them. So these are the basic fault of the state. They have to come up to do the hockey in such a manner, or in any sports, not for the hockey, that they'll have the children should have to be told who are the role models. Mr. Pragat walked down in the Punjab, few people will remember. But if properly role models has been done, it has to be done. So basically, these are the states who had to take care of it. Hockey, Mr. Turkey had gone, so a lot of questions were to him, but then he had run away from here, so it's better for him. Thank you very much. Well, quite a few suggestions from Sir. Sir, if you like to answer the question, please. You can at least speak on the talent hunt which states can do. Talent. I mean, most of the states are doing talent hunts. States have started their own centers of excellence. We call them hostels, centers of excellence. We do have, for example, in Tamil Nadu, we do World Beaters Talent Scheme. Every year we run this scheme, scout talent and put in our hostels. We run around 38 hostels spread across 24 disciplines. Hockey is one amongst it. And as he rightly said, we do put this 7 crore, 8 crore pitches. Sometimes we don't create any training facilities. We had similar situation in Chennai where we created a facility for training facility for girls to ensure that there are people to train on the facility. Coaches, yes. States have to invest in good coaching programs, no second thoughts on that, and many states are doing it. I mean, at least we are utilizing the services of past champions. For example, Mohammad Riaz, a legendary player from our state, is one of our expert coaches. We have got a foreign coach for hockey. One Mr. Eric is engaged with us for the last 1.5 years as a foreign coach. So I think states are doing it, but yes, there's always room for improvement. Any more questions, please? Hanji. जी सभी को नमस्कार। मैं राजेश चौहान हूँ और जैसा टिर्की भाई ने बताया कि उनके कैप्टन प्रगट सिंह वैसे रहे हैं, तो मैं भी बताऊं कि मेरे जो वर्ल्ड कप में जो पहले वाइस कैप्टन थे वो दिलीप टिर्की थे, और जब इंडिया की तरफ से मैं पहली बार खेला तो प्रगट भाई साहब मेरे कैप्टन थे। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि प्रगट सिंह भाई साहब भी यहाँ पे हैं और वाइस कैप्टन भी यहाँ पे थे, और मेरे गुरु जिन्होंने मेरे को भारत का कोच बनाया,
जो तुर्की के भी कोच रहे हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे हैं, श्री ए के बंसल जी। और जो स्कूल में मेरे जैसे बहुत से प्लेयरों को इंडिया खिलाया, ओलंपिक में भेजा, वर्ल्ड कप खिलाया और ओलंपिक में मेडल जो लेके आए हैं अभिषेक, उनके गुरु भी हमारे पीछे बैठे हैं और उन्होंने कभी हॉकी नहीं खेली है। वो श्री शमशेर सिंह जी हैं, वो पीछे बैठे हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हिंदी के टीचर हैं स्कूल में, उन्होंने कभी स्पोर्ट्स नहीं खेला, कभी हॉकी नहीं पकड़ी, लेकिन यहाँ बैठे हैं बहुत सारे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वो बैडमिंटन इतना अच्छा खेल सकते हैं, टेबल टेनिस इतना अच्छा खेल सकते हैं। वो स्कूल में हमें देख के सारी चीज़ें सीखी उन्होंने। तो जैसे प्रगट सिंह भाई साहब ने बोला पहले कि हमें इंसान बनाने चाहिए। जब डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे प्रगट सिंह भाई साहब, तो मैं चंडीगढ़ इनके पास जाता था, तो मैं इनसे बात करता था कि हॉकी कहते हैं कि सबसे मुश्किल खेल, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप खेलेंगे तो दुनिया में आप कोई भी गेम खेल सकते हैं, क्योंकि जो झुकता है वही ज़िंदगी में ऊपर उठ सकता है, और जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा झुकता है वही लंबी छलांग लगा के ऊपर उठ सकता है। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि जब इनसे बात होती थी, जो इनका सपना है और जो दिलीप भाई का सपना है, इनके रहते जो ओलंपिक में मेडल आ रहे हैं, तो जब डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे हम बात करते थे, तो नशा इस देश से कैसे दूर हो, पंजाब से कैसे दूर हो। तो जब ये डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे तो गांव में जहाँ जहाँ नशा ज़्यादा होता था वहाँ पे स्पोर्ट्स के, सिर्फ हॉकी नहीं, हर स्पोर्ट्स के जो इक्विपमेंट थे उन गाँव में भिजवाते थे। और जो सपना इन्होंने देखा है कि भारत को सिर्फ हॉकी में नहीं, वर्ल्ड लेवल पे सशक्त कैसा बनाया जाए स्पोर्ट्स में और इंसान में, इन्होंने वो सपना देखा हुआ है। जैसे दिलीप भाई ने भी सपना देखा है, जब से वो बने हैं हॉकी इंडिया लीग स्टार्ट हो गई है, और जो सपना देखा है कि अंडर 17 का, अंडर 19 का, अंडर 15 का, हम रात दिन बातें करते रहते हैं इसी के बारे में, वो सपना पूरा हो रहा है। और प्रगट भाई साहब ने जो एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में आए हैं, मैं कहता हूँ कि सभी को आना चाहिए और देश के लिए जो कर सकते हैं। और बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि श्री शमशेर सिंह जी हिंदी के टीचर रहे हैं, और वो ऐसे कोच हैं कि वो हॉकी के भी कोच भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, टर्फ पे ले जाना है या ग्रास पे प्रैक्टिस करवानी है, वो सब कुछ टूर्नामेंट खिलवाना है, किस प्लेयर को बुला के अपने ग्राउंड पे प्रैक्टिस करवानी है, वो सब एक इंसान ने पैदा कर दी हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जो जितने भी द्रोणाचार्य अवार्डी हैं या अर्जुन अवार्डी हैं, बिल्कुल ठीक कहा है कि वो ग्राउंड पे नहीं आते हैं, तो उनको भी ग्राउंड पे आना पड़ेगा। हम सिर्फ दूसरे को ये करते रहें, ब्लेम करते रहें, तो उनको ग्राउंड पे आना पड़ेगा और हमें अपनी जो जिम्मेदारी है वो लेनी पड़ेगी। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए भाई साहब को दोबारा कि ये आज MLA हैं और दिलीप भाई हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। जो सपना इन्होंने देखा है दोनों ने, वो सपना मैंने भी देखा है, और आप लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि वो सपना जल्दी से जल्दी पूरा होगा। और आप सब लोग अपने घर को छोड़ के ग्राउंड पे जिस दिन आएंगे, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो मीडिया वाले हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हैं, जिस दिन ग्राउंड पे आएंगे उस दिन वो सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब मैं जूनियर वर्ल्ड कप में था, सेमीफाइनल खेल रहे थे जर्मनी से हम भाई साहब उस टाइम सीनियर इंडिया के कोच थे, जर्मनी में गए थे। जी मेरी थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन सेशन था, बहुत मजा आया, इंसाइटफुल था, एंड सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है रूम में पैदा हो गया। हर कोई ये चाहता है कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स से ऊपर स्पोर्ट्स और एथलीट्स रहे, और यही हम कामना भी करेंगे। थैंक यू सो मच for joining us here, and if you can come together, we'll take a photograph. You can also join. Thank you so much. That's very sweet.